Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed speaker and honored delegates, it is my pleasure to welcome you all to the Silver Jubilee celebration of Kulgaon Badlapur Malayali Samajam. Myself, Neetu Nambiar, is honored to be the host for the evening. Without further ado, let us proceed to the exciting events we have planned for you tonight. Let us start by welcoming the guest on stage. I request Swami Krishnananda Saraswati, President Sri Ramdas Ashram Ambeshev, to please come on to the dais. I request the President of our Samajam, Sri Jinesh Keshi, to please bring Swamiji onto the dais. Can we have some music, please, while the delegates are coming on stage? Please give a big round of applause for the President Jinesh Kesi welcoming Swami Krishnananda Saraswati. I now request Sri Anand Pardeshi, actor and comedian, to please come on to stage. I request President of our Samajam, Sri Jinesh Kesi, to please be on dais. I request Sri Rajendra Gorfade, ex-President KBMC, to please come upon dais. I request Sri Nisha Gorfade, Councillor KBMC, please come upon dais. Further, requesting the President of Ullas Arts and Welfare Association, Suresh Kottarakara, to please come upon dais. Requesting the President of Manera Gaon Social Service Society, Ullasnagar, Lali PK, to please come up on stage. President of Badlapur Ayyappa Seva Sangam, Gangadharan Nambiar, to please come up on stage. सुरेश अंकल, कोई और बचा है? कोई और बचा है? कौन बचा? आप बचे हो, आपके अलावा कौन? प्रेम, क्या नाम बोला आपने? लाली थी, आए हैं क्या? आए क्या? I request Shri Lal, Amchi Mumbai Kairali TV, to please come up on stage. President of Ullasnagar Malayali Samajam, TM Sadanandan, to please come up on stage. I request the Secretary of Kulgaon Badlapur Malayali Samajam to please welcome the guest.
Let us start this with the auspicious lighting of lamp. I request I request Sharat Yadav Shirgaon, Samaj Sevak, to please come up on stage. I request Swamiji Krishnananda Saraswati to please lighten the lamp along with all other dignitaries. Please proceed towards the lamp lighting. Thank you. I now request our Samajam Secretary, Shri Suresh Kumar, to address the guests and welcome them. ആദരണീയ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റ് നമ്മുടെ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ സമാജത്തിൻ്റെ 25ാം സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷമാണെന്ന്. എൻ്റെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. മഹത്വപൂർണ്ണമായ 25 വർഷം കുൽഗാവ് ബദലാപൂർ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ കടന്നുപോയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ, ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യവും അഭിമാനവുമുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമാജം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ബദലാപൂരിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മലയാളികളോടും കടപ്പാടും സ്നേഹവും അവരെ സ്മരിക്കുകയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം പല ആൾക്കാരും ഈ സമാജം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പല ആൾക്കാരും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഈ മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ഇനിയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമാജത്തിൻ്റെ മുൻ ഭാഗികളും മറ്റുള്ള ഇതിനു മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെയൊക്കെ ആശീർവാദം ഇനിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മലയാളി സമാജങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുംബൈയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള എനിക്ക് ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോടിരിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളികളോടും മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ 25 സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു. അടുത്ത 50 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും 75 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ നെക്സ്റ്റ് പീയെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മാത്രം നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളൂ. കാരണം ഇതുപോലുള്ള മലയാളി സമാജങ്ങൾ അന്നം തിന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ തനിയായ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കും മറുനാട്ടിൽ മുംബൈ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുവാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ സജ്ജമാക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സമാജത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിപാടിയിലെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്വാമിജിയെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ശ്രീ രാമദാസ മിഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ്, ശ്രീ രാമദാസ ആശ്രമം മഠാധിപതി എന്ന് വേണ്ട മുംബൈയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തും അദ്ദേഹം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഏത് സമയത്തും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന് ഈ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഈ സെലിബ്രേഷനിൽ അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എൻ്റെ സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിലെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹാർദിക് സ്വാഗത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആദരണീയ MLA किशन कतौरे सर आने वाला है. उन्होंने फ़ोन करके बताया था आने वाला है करके, लेकिन टाइम हुआ है, उन्होंने आया नहीं है. उनको भी परिचय करके के कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, आप लोगों को सब पता है. कोई व्यक्ति बच्चे को पूछे तो किशन कतौरे कौन है, उन्होंने सब लोग बता देगा. इतना फेमस परमानेंट हमारा MLA है, उनको भी बदलापुर का ये डेवलपमेंट मैंने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया हुआ, उनको भी अपने ये सिल्वर जुबली फेस्टिवल में उनको भी स्वागत, हार्दिक स्वागत. फिर നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആക്ടർ, കൊമഡിയൻ, നമ്മളെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോമഡി കാണിച്ച് വളരെ രസിപ്പിച്ചു. आनंद परदेशी, उनको भी ये प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत. പിന്നെ കേരളീയ കേന്ദ്ര സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് TN ഹരിഹരൻ, ഈ സമാജങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അപ്പെക്സ് ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. മലയാളിലെ 10-80 സമാജങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒരു അപ്പെക്സ് ബോഡി ഉണ്ട്. അപ്പെക്സ് ബോഡിയുടെ പ്രസിഡന്റ് TN ഹരിഹരൻ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. फिर
अपना बदलापुर के किंग, आपको पता, वामन मात्रे से उनको भी इन्वाइट किया हुआ, उन्होंने बोला मैं आने वाला है करके बोला हुआ, उनका बारे में भी आप लोगों को सब पता चला। मैं ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को सब मालूम है वामन मात्रे कौन है करके। अपना नगर परिषद का अध्यक्ष था, अभी शिवसेना का प्रमुख है बदलापुर का, उनको भी मेरा नाम से, आप लोगों का नाम से, हमारा समाज का तरफ से भी स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। फिर अपना इधर का एक्स प्रेसिडेंट कुलगांव बदलापुर नगर परिषद एक्स प्रेसिडेंट नंदकिशोर राम पतकर साहब आके गया, क्योंकि उनको कुछ काम आया हुआ था, इसके वजह से उन्होंने 10-15 मिनट इधर बैठ के उन्होंने निकल गए। उनको भी अपना ये प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന അംജി മുംബൈയുടെ ചീഫ്, മുംബൈയുടെ ഏത് പ്രദേശത്തും മലയാളികളുടെ ഏത് സ്പന്ദനം കണ്ടാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്ന ശ്രീ പ്രേംലാൽ ജിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നമ്മുടെ സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു। फिर भी इधर एक्स काउंसलर श्री अरुण सुरवल, उन्होंने आने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों हो गया, नहीं आ गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ उनको, इसलिए उन्होंने भी आया नहीं है। उनको भी मैंने हमारा समाज का तरफ से, आप लोगों का तरफ से, मेरा तरफ से स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत। फिर अपना और एक गेस्ट है राजेंद्र गोरपड़े सर, उन्होंने एक्स कुलगांव बदलापुर नगर परिषद का प्रेसिडेंट था, उनको भी अपना समाज तरफ से, आप लोगों को एक एक व्यक्ति की तरफ से, मेरा तरफ से उनको भी ये सिल्वर जुबली फेस्टिवल में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। और केबीएमसी काउंसिलर श्रीमती निशार गोरपड़े, वो मैडम को भी मेरा तरफ से और समाज का तरफ से, आप एक व्यक्ति के तरफ से उनको भी स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। उल्लास आर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट सुरेश കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് ഈ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു। ഉല്ലാസനഗർ മലയാളി സമാജം പ്രസിഡന്റ് ടി.എൻ. സദാനന്ദൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു। അടുത്ത മേനേഗാവ് സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് പി കെ ലാലി, മുൻ ലോക് കേരള സഭാ മെമ്പർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, മുംബൈയിൽ എവിടെ വിളിച്ചാൽ, ആര് വിളിച്ചാൽ, എപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ, ഏത് സമയം നോക്കിയാലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആർക്ക് ഏത് സഹായവും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനായ ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് പി കെ ലാലി അവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേരിലും ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം।
വന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ വിത്തൽവാടി മലയാളി സമാജം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മണികണ്ഠൻ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ രവീന്ദ്രനും ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ആളുണ്ട്. ശരത് യാദവ്, അദ്ദേഹം ഒരു സാമാജിക പ്രവർത്തനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിലും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി ചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഏറ്റിരുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ വടക്കൻസിനും നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീശക്തി ഗ്രൂപ്പിനും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സ്വാഗതം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുൽഗാവ് ബദ്ലാപൂർ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് KC ജിനേഷ് അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. हेलो, नमस्कारम। हम लोग को गोरपड़े साहब भी बैठे हैं और मैडम भी बैठे हैं तो 2 शब्द हिंदी में बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग को आदत नहीं है। बहुत कभी सेक्रेटरी साहब का भाषण सुना, मैं खुद मुझे खुद गिल्टी फील हो रहा था कि सर हम लोग का हिंदी बहुत सुधारना है अभी तो आप लोग बैठा है करके 2 शब्द मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। तो आदत ही नहीं था, लेकिन मुझे लगता है हमारे समाज की तरफ से एक बदलाव है। नहीं तो हम लोग ज़्यादा करके अपने ही लोगों को बुलाता है, अपना ही कार्यक्रम चलाता है, अपने ही सीमा के अंदर हम सिमट जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी देखो गोरपड़े साहब बैठा है। आप कभी ऐसा पॉलिटिकल कोई लीडर को देखा है क्या, किसी जिसके घर पे आप खुद जाके डंडी मतलब बजा के आप अंदर जाके आपका बात रख सकता है? ऐसे पॉलिटिकल लीडर आपको मिला है क्या कभी? तो वो है गोरपड़े साहब। अभी मैं इनविटेशन देने गया हूँ, मैं पर्सनली गया हूँ, जाके बजाया, वो खुद दरवाज़ा खोला, आओ बैठो बात करो, ऐसा है। अभी मुझे नहीं लगता है कि इन लोग को मतलब जो राजनीति को लेके हमारे दिमाग में जो पिक्चर है ना, वो चेंज करने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको क्या लगता है कोई पैसा कमाने से शांति मिलेगा लाइफ में? क्या आपको मिला क्या शांति? कब बंद करने वाला है आप पॉलिटिक्स? नहीं बंद करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये एक एडिक्शन है ना। देखो अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अध्यक्ष बन के अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन 1 साल में मुझे इन लोगों का खुशी क्या है वो महसूस हुआ। क्योंकि 1 साल में हफ्ते भर में कम से कम 2-3 लोगों का कुछ ना कुछ तो समस्या हम सोल्व किया ही होगा। आप अभी देखो मुझे बात करने में यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं काँप नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं सब लोग मेरा पहचान के। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, इससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट लाइफ में कुछ नहीं है। मुझे लगता है घोरपड़े साहब, निशा मैडम, आप लोग का भी मोटिवेशन यही रहेगा और मेरा भी मोटिवेशन यही है, क्योंकि पैसा अपना मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। तो आपका काम ऐसे ही कीजिए, आगे भी बढ़िए ऐसे ही। अभी जो बदलाव का मैंने बात किया, क्या है, हमारी समाज जब बना था 99 में, मैं तो बच्चा था, मैं 9th स्टैंडर्ड में था। मैं जो समझता हूँ, ये लोग जो बोला है, बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं वो लोग बोले हैं, उनसे मैं समझता हूँ सब तब परिस्थिति अलग थे।
अभी लोग बहुत गरीब थे, अपना घर संभालने, अपना हॉस्पिटल का खर्चा, बच्चों का स्कूल का खर्चा करने में लोगों के पास पैसा नहीं था। तब डर बहुत था कि मुझे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, मेरा मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, सब लोग गांव में, मैं इधर अकेला। तो साथ में जुटने का जरूरी बहुत था वो टाइम पे। वो टाइम पे गांव से भी बहुत लोग आते थे। आजकल गांव से लोग आना ही बंद हो गया। जो इधर है ठीक है, आप तकलीफ बहुत सा है आपके यंग एज में, लेकिन अभी सब सेटल हो गया। अभी सब सेटल हो गया तो धीरे धीरे अपना जो रेलेवेंस है मलयाली समाज का वो कम होते जा रहे हैं कि लोग हम एकजुट के क्यों रहे, मेरे पास काफ़ी पैसा है, मेरा बच्चे को मैं संभाल रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल का बिल मैं मतलब मैनेज कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरी नहीं। तो अभी हम लोग क्या सोच रहे कि आपको क्या खुशी देते हैं। आपको मैं बोला घोरपड़े साहब के जैसा कि पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलता है, आपको सामाजिक सेवा करना है। और आपके अंदर मैं बोलता हूँ 80% 90% जो हमारे लोग हैं, अपना खाना पेट भरने के लिए पैसा है, बाकी 10-20 लोग ऐसा रहेगा जिसको अपना खाना खाने के लिए पैसे का कम पड़ रहा है। तो अभी क्या है, हम हमारे समाज के बाहर जाना चाहता हूँ जिसमें आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि हम सोशल एक्शन फोर्स करके एक फोर्स बनाया है जहाँ पे सोशल सर्विस करने के लिए जो जवान लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग जो अपना कीमती टाइम देने के लिए तैयार है, उनको मिला के एक सोशल एक्शन फोर्स बनाया है। उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बदलापुर में क्या बदलाव ला सकता है, हम लोग क्या वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये हम सोच रहे हैं। इसमें आगे जाके आप लोग का बहुत हेल्प हम लोग को लगेगा सर, ये मैं बात आपके सामने रखता हूँ। भले कितना भी चपाती खाए, थोड़ा तो चावल बनता ही है अपना, तो थोड़ा मलयालम में बोलना भी जरूरी है, माफ कीजिएगा क्योंकि अपने लोग हैं, थोड़ा अपने मलयाളം में भी बात करना जरूरी है। അപ്പോൾ നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമാജം സ്ഥാപിച്ച എല്ലാ നേതാക്കളെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ചുപേരെ ഇന്ന് ആദരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഓൺ പേപ്പർ തുടങ്ങി വെച്ച ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ സമാജം 98-ലെ തുടങ്ങി അതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. അവരെയൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും, ക്ഷമിക്കുക. അവരെയൊക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത്, ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ മക്കളെ വളർത്താനും അവരെ വലുതാക്കാനും കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? ഇപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിഷമം? നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ അടുത്തില്ല. പലരെയും ഞാൻ അറിയാം, ഈ കൂട്ടത്തിൽ പലർക്കും അറിയാം, മക്കൾ വിദേശത്താണ്, കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ മാറി. ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിനാണ് നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥത വേണ്ടത്, മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമില്ല. ഇപ്പം പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമാജത്തിൻ്റെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി. ഇപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമാജം കുടുംബസംഗമം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹേന്ദ്രപ്പാടയിൽ നമ്മൾ കുടുംബസംഗമം നടത്തി, അതിനുശേഷം എല്ലാവരും പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു, നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നു. ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാക്കണം. പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കാനാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മലയാളി കടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു, പല ട്രെയിനുകളിൽ വെച്ച് കാണുന്നു, ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണുന്നു, പരസ്പരം ചിരിക്കുക. ആ ചിരി ഇപ്പം പലതും വെർച്വലാണ് അല്ലേ? പലതും വെർച്വലാണ്, നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഒരു സ്മൈലി കൊടുക്കും, അതും ചിരിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ സമാജം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ത്രീ ശക്തി തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷം പോലും ആയില്ല, പക്ഷേ അവർ 450 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവരെ അതിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഈ സമാജം തന്നെ ഇനി ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളാണ്. അവരുടെ ശക്തിയും അവരുടെ കഴിവും, സ്ത്രീയുടെ ശക്തി ഏറെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം. ആരും ചെരുപ്പെടുത്തടിക്കാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ആ രീതിയിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ അവരുടെ തൻ്റെ ഇടം, അവരുടെ സാമർത്ഥ്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ. ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾക്ക് നല്ലോണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ. കാരണം നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? നമ്മൾ സ്പോർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, സമയം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു, നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പരസ്പരം കാണാനും ചിരിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും തമ്മിൽ ഇടപഴകാനും സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സാണ്. അതിനായി ഈ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, President Jinesh. I now request President Jinesh to please felicitate Swami Krishnananda Saraswati with a token of love and shawl. Can
Can we have some light music going on? Big round of applause, guys. ताली बजाने से ठंडी भी कम लगेगी, थोड़े जोर से तालियां हो जाए. I request Shri Preman Pillai, Vice President, to please felicitate actor and comedian Shri Anand Pardesi. I request President Jinesh to please felicitate Shri Rajendra Gorfade, ex-President KBMC. राजेंद्र जी, तुम्ही इथे आलात, आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. महाराष्ट्रात राहत असो तर मराठी तर आलीच पाहिजे. I request Shri Kumar Menon to please felicitate Shri Nisha Gorfade. I request Benny uncle. Benny uncle, are you here nearby? I request committee member Benny to please felicitate President of Ullas Arts and Welfare Association, Suresh Kotakara. I request Indira Prabhakaran, Chairman Stree Shakti Committee, to please felicitate the President T.M. Sadanandan, Ullasnagar Malayali Samajam. I request Rakhi, the conveyor of Stree Shakti Committee, to felicitate Manera Gaon Social Service Society Ullasnagar's President Lali PK. I request Rakhi ji to please felicitate President Lali PK, Manera Gaon Social Service Society Ullasnagar. I request Sri Lekha ji to
Committee member to please felicitate the secretary Ravindran from Vittalwadi Malayali Samajam. नहीं है? एक second. I request the secretary Suresh Kumar to please felicitate Shri Prem Lal from Kairali TV. I request Sunny Ji, Joint Secretary, to please felicitate Sharad Yadav. I request Sri Lekha teacher to please felicitate Ayyappa Seva Sangam President Shri Gangadharan Nambiar. I request Sri Rajendra Gorfade to speak a few words. आप सभी को मेरा नमस्कार। इस बदलापुर कुलगांव मलयालम समाज के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में आप 1500 किलोमीटर दूर से केरला से आए हुए सारे महाराष्ट्रियन लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 25 साल समाज की संगठना चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिन लोगों ने 25 साल से ये संगठना चलाई, समाज को आगे चलाया, उनका मैं विशेष करके अभिनंदन करना चाहता हूँ। राजनीति में तो सब अपने अपने काम करते हैं, लेकिन समाज का काम करना इतना इजीली नहीं है। ये मंडल के अध्यक्ष मेरे बाजू में रहते हमारे मित्र जिनेश जी, सेक्रेटरी सुरेश जी, जिनको मैं 30-35 साल से पहचानता हूँ, हमारे मित्र गंगाधर जी, और हमारे सबसे बड़े आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी, जिनको मैं कई सालों से जानता हूँ, जिनके आशीर्वाद से हम लोग बड़े हुए हैं, ऐसे नित्यानंद जी स्वामी जी, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। सारे कमिटी मेंबर्स और सामने मेरे बैठे हुए सारे, जिनको देश भर में बोला जाता है कि केरला इज अ 100% एजुकेटेड सिटी। आप जहां पे भी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल हो, फोर्टिस हॉस्पिटल हो, कोकिलाबेन हॉस्पिटल हो, जो बड़े बड़े नामचीन हॉस्पिटल देश में है, वहां पे ज्यादा करके नर्सेस अगर कोई रहेंगे तो केरला के रहते हैं। इसका रीजन ऐसा है कि ये लोग
100% एजुकेटेड रहते हैं, इसलिए इनको हर हॉस्पिटल में प्रायोरिटी दिया जाता है। क्योंकि ये मैं नज़दीक से जानता हूँ, इसलिए मैं सारे लोगों को दिल से चाहता हूँ कि आपकी सिटी, आपका जो राज्य है वो 100% एजुकेटेड राज्य है। महाराष्ट्र में आपको रहना है तो थोड़ी फार आपको भाषा मराठी आनी चाहिए। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजे छत्रपती शिवरायांना नमन करतो। स्वामी अयप्पा के सारे हमारे भक्त मेरे सामने बैठे हुए, जिनकी कृपा आप पर है, उनको मैं नतमस्तक होता हूं और प्रणाम करता हूं। क्योंकि हिंदू धर्म में आस्था बहुत बड़ी चीज है और जिसके बल पर हम जीते हैं वो हिंदू धर्म की आस्था हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और आप लोग उसमें सब माहिर हो। हमारे इस मंडल के अध्यक्ष जी जिनेश जी जब मुझे आमंत्रण करने के लिए आए तो मैंने, इसके पहले मुझे कभी आमंत्रण आया नहीं, लेकिन उन्होंने हिंदी में भाषण करते हुए बोला कि हम अभी थोड़े से ओपन हो रहे हैं कि सारे समाज के लीडर्स लोगों को और जिन जिन सोशल वर्कर को हम लोग हमारे प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो ये आप बहुत अच्छा काम किया कि आपने दूसरे लोगों को भी आपकी जो संस्कृति जानने के लिए बुलाया। मैंने आज पहली बार बहुत नजदीक से देखा कि तुम्हारे जो संस्कृति है वो, उसके डांस, उसके कल्चर क्या है, वो हमको अभी देखने को मिला। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर समाज में अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले अपने राष्ट्र को प्रेरित करना चाहिए। फर्स्ट नेशन होना चाहिए, फिर हमारा स्टेट होना चाहिए और फिर हमारा समाज होना चाहिए। 500 परिवार लगभग इस बदलापुर में रहते हैं, जिनका मेंबरशिप आपके मलयाली मंडल में है। लेकिन गंगाधर जी मुझे बोल रहे हैं कि ज्यादा लोग हमारे अभी रहने के लिए आए हैं। मैं आपको गंगाधर जी कहना चाहता हूं कि 500 नहीं, यहाँ पे 1000 लोगों का परिवार यहाँ पे रहने के लिए आया है, लेकिन आपको उसे अभी तक उनके नजदीक आप आए नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी समाज को मैसेज देना चाहिए कि भाई जो जो बदलापुर में नए रहने के लिए आए, इस मंडल को हम लोग परिचित है, उन्होंने अपनी मेंबरशिप लेना चाहिए। क्योंकि मैं इस समाज को काफी साल से जानता हूं। हमारे आजू बाजू में जितने लोग हैं वो केरला से आए हुए लोग हैं। अपने अपने बिजनेस में कोई टेलर का काम करता है, कोई फैब्रिकेशन का काम करता है, कोई हॉस्पिटल में नर्सेस का काम करता है, अलग अलग जगह पे काम करता है। लेकिन एक सांस्कृतिक जो रहता है वो केरला में ज्यादा होती है और हमारा जो बदलापुर है वो एक सांस्कृतिक शहर है। आपको मैं ये गर्व से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आज जो प्रोग्राम इस बदलापुर में चल रहा है वो आप कितने सेफ है, सुरक्षित है, इसका एक ये नमूना है। कभी कभी मैं गर्व से कहता हूं कि आप जितना केरला में सेफ नहीं रहेंगे, इतने बदलापुर में हमारे सेफ है। कि किसी हमारे केरला भाई को, किसी मलयालम भाई को कभी किसी बात की तकलीफ इस बदलापुर में हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपके भाई है, हम आपके रिश्तेदार है और यही हमारी बदलापुर की संस्कृति है। मैं ज़्यादा देर बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी 1 घंटा देर हुआ है, मुझे और 2 कार्यक्रम जाना चाहता है। लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आदर सत्कार किया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार हूँ। एक खास करके एक प्रोग्राम अभी इसके बाद में होने वाला है जो खास करके केरला से लोग आए, लेकिन मैं वो कार्यक्रम मिस करूँगा क्योंकि मुझे आगे जाना है। फिर एक बार आपके मलयाली मंडल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू राजेंद्र जी। सारा भारत का संतों के लिए एक मंडप बनाया है। आप जाता है ना, ताकि खबर उधर आ जाए। आप
थँक्यू राजेंद्रजी, वेळात वेळ काढून तुम्ही इथे आलात. आय नाव रिक्वेस्ट स्वामी कृष्णानंद सरस्वती टू से अ फ्यू वर्ड्स. हेलो हेलो. ओम सद्गुरुभ्यो नमः. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिवभक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम्. भारत माता के वंदे वसुधैव कुटुंबकम. सब भाषाओं का जान एक ही है. हमारा भारत का सविशेषता है अनेक भाषा, अनेक प्रांत, अनेक संप्रदाय, ये सब है. फिर भी बहुत बहुत पुराना समय से ये कह रहा है माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिवभक्ता चा स्वदेशो भुवनत्रयम्. मैं जरा मंग्लिश में मंदी में सब जरा बात करेगा. बात ज़्यादा करने का नहीं है करके फ्यू वर्ड्स बोलेगा, बोला इसे फ्यू वर्ड्स बोलेंगे. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഞാൻ ചേക്കേറിയിട്ട് 40 വർഷം കഴിയുകയാണ്. ഈ 40 വർഷത്തിനിടയിൽ ബദലാപൂർ പോലും ആരെയും പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോവുകയോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. What do you want? What do you want? Tell me. Don't interfere. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബദലാപൂർ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വിളക്ക് കൊളുത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ശ്മശാനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരതം മുഴുവനും ചുറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല. बदलापुर में एक स्मशान में दीप जलाने के लिए मेरे लिए मौका मिला इंट्रोडक्शन करने के लिए. मैं भारत पूरा घुमा लेकिन कहाँ भी मुझे उसके लिए बनाया नहीं. हॉस्पिटल है, विद्यालय है, मंदिर है, ये सब जगह में करने का मौका मिला. धाराल मलयाल समाज में, भारत का हर एक स्टेट में मलयाल समाज में हमने बहुत काम किया हुआ है. लेकिन इधर आके 40 बरस से बाहर का काम सब छोड़ के वो जंगल के अंदर बैठे हैं. इसलिए हिंदी में मैंने मंदी बोला, मलयालम और हिंदी, मंग्लिश बोला, मलयालम और इंग्लिश, ये सब में बात करते हैं तो मेरा मन में खुशी होता है. इधर एक मलयाली होते हुए बदलापुर महाराष्ट्र को एक संभावना देना चाहता है. मैं दिया है लेकिन कभी बोला नहीं. वहाँ एक 4 धाम बनाने के लिए कोशिश किया, बना दिया. 4 धाम, एक कैलाश, एक दक्षिण भारत का रामेश्वरम, एक गुजरात का द्वारका और एक यूपी का अयोध्या. ये केरल इधर अम्बेशिव गांव में बदलापुर में बनाया और ये महाराष्ट्र को हम उसका महाराष्ट्र का चरणों में हम समर्पण करता है. कतोरी जी उधर आके भारत गुरु मंडप बनाया है. केरला से 2 संत और महाराष्ट्र का 3 संत, 5 संतों को प्रतिष्ठा किया है वहाँ. बाकी सब देश का एक संतों को मिनिमम वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे. ज्ञानेश्वरी महाराज के लिए वेद मंदिर बनाया है. और केरला जाके अय्यप्पा मिलने के लिए आप लोग धड़कते हैं तो
बदलापुर में शबरीमला बना के आपको दिया हुआ है, और शनि सिंगनापुर में उधर का रिवाज तोड़ने के लिए आप ही लोग गया, वही लोग केरला में भी गया, उसके लिए एक शनि सिंगनापुर भी उधर बनाया है। उधर जो कानून तुम्हारा खिलाफ होता है करके तुम सोचते हैं तो इधर वो कानून कुछ नहीं है, आपको आके आनंद से कर सकता है। ये सब चुपके हमने किया हुआ है, ये भारत के लिए और दूसरा जगह के लिए भी बदलापुर का एक संभावना है। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ മലയാളി എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങാതെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭാഷയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് മാനവരാശിയെ മുഴുവനും ഒത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പിന്നെ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, അന്നദാനം. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ദിവസം 100 പേർക്കെങ്കിലും കൊറോണ സമയത്ത് പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സർക്കാരിൻ്റെയും ഒരു കപ്പ് ചായ പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ അവിടെ 148 ഡൗറി ഫ്രീ മാരേജ്, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മലയാളി, ബീഹാറി, ബംഗാളി, ഭദ്രകാളി कोई भी हो, लेकिन एक लड़की का शादी करने के लिए ज़मीन सेल नहीं करना, उधार नहीं लेना, ये बोलने में आसान है लेकिन मैं करके चुपके करके दिखाया है। अभी हम लोग सब हर एक मलयाली समाज में कोशिश करते हैं तो इधर एक मलयाली लड़की को, बाजू का मराठी को, गुजराती को, पंजाबी को, कोई भी हो, उसको शादी करने के लिए उधार नहीं लेना और उसको ज़मीन सेल नहीं करना, ये आप लोग कोशिश करना चाहिए। संस्कार नहीं होते तो हमारा सब कुछ गया। आचार विचार से संस्कार होता है। मनी लास्ट, नथिंग लास्ट. When character lost, everything lost. So character is made by customs and manners. So I welcome all of you. आप सबको हम ये प्रेरणा देना चाहता है, भारत एक होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। भारत को छोड़ के ये इंडिया बना, वो इंडिया को हम छोड़ के अब ये भारत बनाया। वो दिन बदलापुर में अम्बेशु गांव का रामगिरी में हमने एक काला गोदंड राम को प्रतिष्ठा किया है। यह भी किसको बताया नहीं है, ऐसा चुपके रखने के लिए नहीं है, लेकिन क्या है, कुरुक्षेत्र का मट्टी लेके आया भारत पूरा रथ यात्रा करके, वो वहाँ डाल के द्वारका का ध्वज पूरा हो गया, सब अर्धा काम हो गया है, वो बनाया है। ये भारत का अखंडता के लिए है। अखंड भारत हमारा नारा है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। ये नारा आप याद रखें। हम मलयाली पैदा होया वो गलती नहीं है, कोई भी भाषा में, भाषा हमारा ऑर्नामेंट है। लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज एक संगीत का धारा है, जैसा नदी हजारों बहता है पहाड़ों से, लेकिन जाता है समुद्र में जाते हैं तो वसुधा एव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, अटर्ड ओनली इन द ग्लोब, ओनली इन भारत ऋषिज, द ग्रेट ऋषिज ऑफ आवर कंट्री, दे डिक्लेयर्ड दिस लॉन्ग बैक। ये हमारा जर्नलिस्ट को भी हमने बुलाया नहीं, कोई पत्रकार को अभी तक बुलाया नहीं। पत्रकार के साथ मेरे पे दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्र चला के फेल हो गया, कम से कम 6.5 करोड़ रुपया नुकसान भी हो गया। आपका ऑफिस में आने के लिए मेरे लिए ताकत कम है, इसलिए आप लोग आ जाना, वहाँ बहुत कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। भारत एकता के लिए, भाषा के बिना, जाति के बिना, संप्रदाय के बिना भारत एक है करके हिम्मत से बोलने का ताकत आप लोग करने का है। करना मेरा काम है, उसके बारे में बोलना मेरा काम नहीं है। इसलिए आप लोगों को किसको भी, चीफ मिनिस्टर को बुलाया नहीं, शिंदे साहब हमको कम देखते ही तो एक हार और एक शाल देगा, बोलेगा स्वामी जी अभी तक हमको बुलाया नहीं है। मैंने बोला हाथी के बुला के दांत का दर्द के लिए निकालना कोशिश नहीं करना, मेरा मुंह फट जाएगा। अभी मैं छोटा हूँ, जब भी बड़ा होने के लिए कुछ होते तो जरूर बुलाएंगे। उन्होंने इधर एक शिवाजी, उधर एक स्टैचू बनाने के लिए सरदार पटेल का स्टैचू बनाया। वो आर्टिस्ट इधर आया था, शिंदे साहब ने उनको बोला
हमारा एक स्वामी है, उधर एक 523 फुट का हनुमान जी बनाने का विचार है। आप उनको मिलना जरा। और हमको खबर दिया, मैंने गाड़ी भेज के उनको लेके आया। एक दिन पूरा उधर रहा, वो करने के लिए वो लोग मंजूर करके हमको बताया। हमारे पास नो मैन नो मनी, आगे नाक पीछे मुंह ये पीठ, उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। बट व्हाट इज दैट? इंटेंशन, मोटिवेशन एंड क्रिएशन। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति जरूरी। यू आर अ पावरफुल पर्सन, यू आर नॉट सपोज टू बी ए क्रीचर, you must be liberated. Everyone is the richest person in the world. You came to the world with everything. You are not, हम जन्म लिया, मैं हजारों को पूछता है क्या तुम जन्म में क्या लाया? कुछ नहीं लाया स्वामी, कुछ नहीं लाया। जैसा बाउलिंग करने का टाइम फिंगर कैसा होता है ऐसा घुमाता है। लेकिन इनका मुख खरीदने के लिए अंबानी, अडानी, बिल गेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट or a global government cannot purchase. He is only holding that one. He is one of the richest man in the world. Is it not so? Yes sir. वो बोलिए। हाँ हाँ जी। देखो इधर आप लोग सुनने के लिए जो है सब करोड़पति हो गए ना, बोलो करोड़पति हो गए ना। उसका डरने का नहीं। यू आर ए लिबर्ड ओपनली, यू आर ए फ्री पर्सन। करोड़पति सब लोग हो गए ना। वो प्रेसिडेंट है, वो चुप बैठो, हमको मालूम है। तुम्हारा समय बहुत है, हमारे लिए समय कम है। आई एम ओनली 85 ईयर। वॉच हमारे पास वॉच नहीं है, फिर तुमको वापस देने के लिए कुछ नहीं है। फिर मेरा वाणी को विराम करता हूँ। जरा ज़्यादा बात किया करके तुम सोचते ही तो हम ज़्यादा बात नहीं किएगा, और बात सुनने के लिए थे तो वहाँ मान जाना। आमंत्रण है आपके लिए, भाषण करने के लिए मेरे लिए प्रिपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं। सबको आशीर्वाद है। ये मलयाली समाज सारा मानव का समाज होके होना चाहिए। क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल एजुकेशन में हेल्प करना। मलयालम हमने 60 आदमी को मलयालम में भाषण करने के लिए सीखा है, मामूली नहीं है। Through Marathi, you study Malayalam, not through English. English very difficult, only 26 letters. Whereas Malayalam and Marathi, there are so much similarity. मेरा वाणी को विराम करता हूँ. എൻ്റെ വാക്കുകൾ കടുത്തു പോയെങ്കിൽ യാതൊരു വിഷമവും എനിക്കില്ല. കടുത്ത വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങളോട് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കോടീശ്വരന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഭാരതാംബയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പുഷ്പങ്ങളെന്നോണം ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ജയ് സീതാറാം, ഭാരത് മാതാ കി വന്ദേ. Thank you, Swamiji. We have our honored guest, Vaman Mhatre, here with us. So I think I'll switch to Marathi now. आज दुपारपासून आपण जे आपल्या मल्याळम समाजातील संस्कृतीचा कार्यक्रमाचे औद्योगिक साधून इथे जमलो आहोत, त्यामधील विविध कार्यक्रम घेण्यात आले आहोत. आपला समाज गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रात राहतो आणि येथील संस्कृती सुद्धा जपतो. आदरणीय दादा, मला सांगायला खूप आनंद होतोय की बदलापुरात राहून मराठी न कळणारं असं एकही मल्याळी व्यक्ती इथे सापडणार नाही तुम्हाला. सर्वांना उत्तम मराठी येतं आणि याचा आम्हाला मल्याळी समाजमला खूपच अभिमान आहे. मी प्रेसिडेंट जिनेशला आय रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू प्लीज ऑनर वामन दादा विथ अ टोकन ऑफ लव अँड शॉल. Please give a big round of applause for Vaman Mhatre. I now request Vaman Dada to please say a few words. हिंदी बोलो चालेल. मराठीत का हिंदीत? कुठला पण चालेल. आज मल्याळम समाजाचा सिल्वर जुबलीओम म्हणजे 25 वर्ष. मला वाटतं गंगाधर सेठ आणि स्वामीजींच्या सानिध्यात येऊन मला सुद्धा 10-15 वर्ष झालेली आहेत. आणि नक्कीच
जो मल्याळम समाज आहे, मला वाटतं मी लहान होतो आणि गंगाधर शेठच्या सानिध्यात कॉलेजमध्येच असताना आलो आणि त्या दिवसापासून आपल्या समाजाबरोबर आमच्या कुटुंबाची नाळ जोडलेली आहे. मी गंगाधर शेठला विचारलं की आपण शिरोळ जुगली करताय, पण तुम्हाला तर या बदलापूर शहरामध्ये राहून 35-40 वर्षे झाली. तर ते बोलले नाही, आमच्या संस्थेला रजिस्ट्रेशन करून आज 25 वर्षे झाली आणि खरोखरच मी आपल्या समाजाला धन्यवाद देईन की ज्या दिवसापासून आपल्या समाजाला मला जेव्हा मॅच्युरिटी आली त्या दिवसापासून ओळखतो की नेहमीच आपला समाज हा एक दुसऱ्याला मदत करणारा समाज आहे. तुम्ही लोक सर्व बरेचसे लोक व्यवसायाच्या निमित्ताने या बदलापूर शहरामध्ये स्थायिक आहात, काही लोक नोकरी निमित्ताने आमच्या शहरामध्ये स्थायिक आहात. परंतु जी आपल्या समाजाची युनिटी आहे, मी नेहमीच बघत असतो की आपला समाज हा धार्मिक आहे. आज प्रत्येक जातीला आपल्या समाजाचा अभिमान असतो आणि त्या अभिमानाने प्रत्येक समाज आपल्या समाजामध्ये कार्य करत असतो. मी गंगाधर शेठ आणि सर्व टीम आपल्या समाजात बघितलेली असतील, बरीचशी मंदिरं आपल्या शहरामध्ये बांधण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. माझ्या 36 नंबर वार्डमध्ये आई आप्पाचं मंदिरसुद्धा चांगलं त्या ठिकाणी बांधलेलं आहे. यथाशक्ती आम्हाला जी काय मदत लागेल ती नेहमीच आम्ही करतो. आमच्या इथं वडवलीला स्वामींचं आश्रम आहे. गंगाधर शेठनी सांगितलं की थोडासा जमिनीचा वाद होता, परंतु मी हिंदू धर्मामध्ये जन्माला आलेलो आहे. मी कधीच ज्या ठिकाणी हिंदू हा शब्द येतो त्या ठिकाणी कधीच कॉम्प्रोमाइज करत नाही. मी माझ्या भावाच्या स्मरणार्थ त्या ठिकाणी वाचनालय करणार होतो. मी ते कामाला त्याच वेळी गंगाधर शेठनी सांगितलं की या ठिकाणून आम्हाला मंदिरामध्ये जाण्यासाठी रस्ता पाहिजे. मी काम तसंच स्थगित केलं. नाही तर तुम्हाला माहिती आहे की एखादा लोकप्रतिनिधी झाला, राजकारणी झाला, नगरसेवक झाला की त्याच्या डोक्यामध्ये हवा जाते आणि ज्या ठिकाणी मोकळी जागा दिसली त्या ठिकाणी टपऱ्या टोपऱ्या बांधण्याचं काम करतात. परंतु आमच्या म्हात्रे कुटुंबामध्ये आमच्या आई वडिलांची, स्वामीजीसारख्या थोर पुरुषांचे आमच्यावर आशीर्वाद आहेत. आम्ही कधीच या बदलापूर शहरामध्ये अशा गोष्टी करत नाही. दोनदा आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने मी नगराध्यक्ष झालो. आपण सर्व समाज बांधव या ठिकाणी आहात. आज सर्वात स्वामी जी सबसे बड़ा मंदिर आई अप्पा का मेरे वार्ड में चैतन्य संकुल में बना है. नायर जी इधर बैठे, मेरे ख्याल से बहुत कमेटी मेंबर भी इधर रहेंगे. जब भी लैंड का इशू था, छोटा सा टपरी टाइप मंदिर था, उनको अच्छा मंदिर बनाने का था. मेरे पास आए, मैं नगर सेवक चुन के आया. मुझे बोला कि इधर फंडिंग की जरूरत है, हम लोग सब कंट्रीब्यूशन करके ये अच्छा मंदिर बनाना चाहता हूँ. मैं बोला बिंदास बनाओ, जिसमें कुछ भी हो मैं आपके साथ में हूँ. गंगाधर सेठ भी मेरे ख्याल से वो टाइम वो उधर आए थे. जब भी वो मंदिर के लिए कुछ भी चाहिए तो अमन मात्रे आपके साथ में रहेगा, ऐसा आश्वासित मैं उनको किया था. लेकिन आपकी कमेटी इतनी होशियार थी, क्या मेरा थोड़ा ही मदद लिया और वो मंदिर पूरे समाज के लिए अभी बन के रेडी हो गया. उधर हर फंक्शन में हर साल मैं उधर जाता हूँ. तभी वो मंदिर में जाने के बाद मेरे को समाधान लगता है कि अपने शहर में कुछ तो भी हिंदुत्व के लिए कुछ तो भी हो रहा है. क्योंकि
मैं खुद ये शहर में कम से कम 12 मंदिर बना चुका हूँ। विठ्ठल रखमाई का मंदिर बनाया, साईं बाबा का मंदिर बनाया, शिव जी का मंदिर बनाया, हनुमान जी का मंदिर बनाया, हमारा गावदेवी का मंदिर बनाया, गणेश जी का मंदिर बनाया। फिर मैंने नाल वो हिंदुत्व से जुड़ी हुए महाराज जी जो आपने जो संकल्प किया अम्बेशु में, मैं आपके उधर आके गया हूँ। अभी मराठा के सीएम थे शिंदे साहब, उनका नाम आपने लिया, उनका और आपका संबंध बहुत अच्छा है मुझे मालूम है। लेकिन मैं शिंदे साहब के तरफ से सभी आपके समाज को बोलना चाहता हूँ कि साहब जो भी वर्ड निकालते वो पूरा करते, वो कौन सी तरफ से पूरा होएगा वो आपको भी मालूम नहीं गिरेगा। लेकिन जो आपने जो संकल्प की है वो संकल्प पूरा करने के लिए अमन मात्रे को भी आजमा के देखो। अमन मात्रे आपके साथ में रहेगा, खाली आपकी रथ यात्रा में शामिल नहीं होता है। जब भी गंगाधर शेठ बोलता है स्वामी जी की रथ यात्रा आने वाली है, हम लोग नाके पे, मैं किधर भी दुनिया में हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। कई लोग अभी मेरा बोलते हैं पासपोर्ट चेक करने वाला है। मैं बोला अमन मात्रे के हफ्ता हफ्ता लेके फॉरेन नहीं जाता है क्या, मौज मजा करने के लिए नहीं जाता है। मैं यार बदलापुर के कंसेप्ट के लिए फॉरेन जाता हूँ। अभी मेरे पास भी जैसे आपके समाज के लोग हैं, गंगाधर जी इधर है, हर साल 100-150 लोगों का शादी फ्री में करके देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल निकाला है, आदिवासी के लिए स्कूल निकाला है। वैसा वामन मात्रे सुधा चैरिटेबल ट्रस्ट है और मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। गंगाधर शेठ को मालूम है, गंगाधर शेठ के आशीर्वाद से मैं बड़ा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तभी गंगाधर शेठ के मैं दुकान में जाके बैठता था। वो टाइम मैं 98 में स्कूल चालू किया लवाली में आदिवासी। अभी मेरे पास 750 आदिवासी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। मेरा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें 1750 विद्यार्थी है। मेरा मराठी स्कूल है उसमें भी 1400 विद्यार्थी है। 3500 लोगों का स्कूल मैं वडौले गांव में चला रहा हूं। किसी से डोनेशन नहीं लेते हो, क्योंकि स्वामी जी सर के आशीर्वाद वामन मात्रे के पीछे है। और लोग हमारे पासपोर्ट चेक करने की बात कर रही है, उनको मैंने कभी भी, वामन मात्रे की उम्र 18 साल थी। स्वामी जी आपके सर के साधु संत के आशीर्वाद मेरे फैमिली और मेरे ऊपर रहेंगे। इसके लिए मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। गंगाधर शेठ सर के दोस्त मिले, जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी वो लोग ने हम लोग को हेल्प किया। मेरा कॉलेज में एजुकेशन करते करते मैं बिजनेस में आ गया। अभी मैं 32 इयर्स बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा उम्र 18 साल था, उस दिन से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जो भी पैसा कमाया, मैं 23 साल में मेरा गंगाधर जी ने मेरा घर बनाया। मैं 5,500 स्क्वायर फुट के बंगले में रहता था, अब मैं 16,000 स्क्वायर फुट के बंगले में रहता हूँ। लेकिन जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, गंगाधर जी को मालूम है कि मैं 75% जो भी मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है वो गौर गरीब के लिए स्वामी जी खर्चा कर रहा हूँ। देखो बदलापुर का जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक पना है, अभी कौन से भी स्पोर्ट्स रहने दो, जो अभी आपके बच्चे लोग हैं, आज सिरोल जुबली आप लोग कर रहे हैं, उनके आंग में जो कला गुण है, उनको स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए आपने देखा, क्योंकि आपके समाज के सब बच्चे लोग हैं, उनके आंग में बहुत कला गुण है, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उनको स्टेज नहीं था। आज सिल्वर जुबली ओम से वैसे उनको आप लोग परफॉर्मेंस करने के लिए इधर लेगा। क्यों? देखो कि अपने समाज के बच्चे लोग में कितना टैलेंट है। अपन खाली देखते टीवी में कि कितने समाज के लोग को टैलेंट है, लेकिन अपने बच्चे लोग में भी टैलेंट है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। लेकिन ये आपके आज सिल्वर जुबली होम्स पे प्लेटफॉर्म मिला है। मैं ज़्यादा कुछ बोलता रहेगा, लेकिन जब भी गंगाधर सेठ हमेशा आपके समाज के तरफ से मेरे साथ हमेशा हमारी चर्चा होती है। वामन मात्रे का पूरा परिवार कभी भी मलयालम समाज के साथ जब तक ये भूमि में है तब तक आपके साथ में रहेगा, ऐसा मैं
आश्वासित करता हूँ, अभी जो जो कार्य अपनी संस्था अपनी ट्रस्ट कर रही है, कभी भी वामन म्हात्रे को याद करो। वामन म्हात्रे आपके ट्रस्ट के साथ में रहेगा। मेरा छोटा भाई एमएलए, उसकी तरफ से भी जब अभी तुम्हारे प्रेसिडेंट ने बोला कि मेरे को आप पैन कार्ड निकाल के दिया, मेरे को ही मालूम नहीं। कभी कभी कौन सा भी आदमी उसको कौन सा प्रसंग आता है मालूम नहीं। देखो हम लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, कितने लोग गौर गरीब है कि उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन स्वामी जी आप लोग के आशीर्वाद हमारे पीछे। मैं कल ही एक हार्ट पेशेंट आया था, मेरे को भी मालूम नहीं था, मैं सोया था, 2-2:30 बजे फोन आया कि उसका एंजियोग्राफी करने का है। मैं खाली हॉस्पिटल में फोन किया, उसका फ्री में एंजियोग्राफी किया। उसका सब लोग आज आके मेरे को मेल के आशीर्वाद देके गया कि आपके वजह से मेरी जान बच गई। इसके लिए जैसे आपका समाज है शहर में काम कर रहा हो, आपके समाज के साथ हम भी जुड़े रहेंगे। इतना ही आज बोलता हूँ। और जो आज 25वां वर्धापन दिन आप लोग इधर साजरा किया है, ऐसा गोल्डन जुबली आप लोग सभी के साथ। स्वामी जी आपका उम्र 86 है, गंगाधर सेठ को मिला 22 तारीख को आपका बर्थडे। आपको भी हम लोग आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन हमारी उम्र भी आपको ईश्वर देवो, इतनी प्रार्थना पूरे समाज की तरफ से आपको करता हूँ। और हमेशा हमेशा आपका आशीर्वाद ये मल्लाजम समाज के ऊपर रहने दो, इतने ईश्वर को प्रार्थना करके मेरे 2 शब्दों को पूर्णविराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वामन दादा, तुमचे खूप 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 आभार। मैं आपको एक खुशी की बात बोलना चाहता हूँ। गया हफ्ता में ह्यूस्टन में हमारा एक मीटिंग था, 180 आदमी उसमें शामिल था। हम लोग ह्यूस्टन में अयोध्या बनाने का है। हमारा महाराष्ट्र का 4 धाम अम्बेशु में बनाया है, वहाँ हमसे एक कलश पूरा अम्बेशु का 4 धाम का मट्टी लेकर जाने का है। आप आना पड़ेगा। पक्का। ये लोग टाइम नहीं है बोला, इसलिए मैंने उसको तोड़ के बताता है। जरूर आ जाना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद वामन दादा। Due to time limitations and time constraints, we are unable to let all the other guests speak. I am, on behalf of Kulgaon Badlapur Malayali Samajam, feel apologetic for it. I'm so sorry we are not able to let you speak. I would now request Preman Pillai to please give the vote of thanks. ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും വെളിയിൽ വന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയാണ്. ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നതിന് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സ്വാമിജിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. नंदी, नमस्कारम. आज आपल्यामध्ये सर्वांचे लाडके आदरणीय आमदार श्री किसनजी कथोरे साहेब उपस्थित आहेत. सलग 5व्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्याबद्दल आमच्या समाजाच्या वतीने त्यांचा आम्ही इथे जाहीर सत्कार करणार आहोत. मी प्रेसिडेंट जिनेश केसी यांना विनंती करते की त्यांनी आप्पांचा सत्कार करावा. ये शायद तो सबको अभी जासी करके अपना कथोरे साहब को पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी हम बहुत छोटे से 1980 से जब जिला परिषद अंबरनाथ से था तभी से लेके अभी तक कोई कभी जीत खड़ा हो गया हरा नहीं है. और ये जो है अपना बदलापुर के लिए अपने लिए
बहुत कुछ ऐसा भाग्य है कि कतोरे जी जैसा आदमी पैदा हुआ। बोलना नहीं चाहता बन जाएगा। सर को मैं बोलता हूँ अपना जो मंत्री बनने के बाद हमारे साथ हर फंक्शन में साथ साथ में रहेगा, क्योंकि मैं पहले सर को बोला था, सबको याद रहेगा क्या पता नहीं, जब शादिर भाई शेख जब बना था तभी पहले आने वाला आदमी हमारा किशन जी कतोरे है। ये शायद सबको मालूम नहीं होगा, मैं साहब के सामने बहुत छोटा बचपन से निकला हूँ, सर को अभी भी याद होगा। वो हिसाब से अभी जो आगे अपना बदलापुर का पहले मंत्री होगा किशन जी कतोरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुलगांव बदलापुर मलयाली समाज सिल्वर जुबिली जो आज बदलापुर में हो रहा है, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। बदलापुर में आप आए हुए बहुत साल से यहां रह रहे, आपके प्रेसिडेंट हमारे सभी साथी मेरे से जुड़े रहे, आप लोगों के साथ भी मैं हमेशा मिलता रहता हूं, लेकिन आप कभी ऐसा मलयाली है और मलयाली प्रोग्राम देखने का मुझे पहला मौका मिला, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बदलापुर में कितना करीब होगा अपने 2-3 हजार के करीब अभी बदलापुर में आप लोग रहने के लिए आए। पुराना बदलापुर और अभी का बदलापुर कुछ बदल हुआ है क्या? एक सबसे अच्छा सिटी बनाने का काम आपके वजह से मैं कर रहा हूं। आप 20 साल मुझे इधर एमएलए बना के रखा है और अभी 5 साल और दिया है। 25 साल एमएलए बनना कोई मुश्किल काम है, लेकिन वो आपने करके दिखाया है। इसके लिए मुझे इतना विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि हमेशा मुझे साथ दिए और बदलापुर आगे लेके जाने के लिए जो आपके दिल में होगा, आपको कभी केरला जाने का दिल नहीं होगा, वैसा ही बदलापुर बनाने का प्लानिंग कर रहा हूं। और हमेशा खुश रहे, कभी भी तकलीफ हो जावे तो मैं आपका परिवार का हूं, यही आपको एक विश्वास देने के लिए मैं चाहता हूं। ये आप लोग सब इकट्ठा होने का एक अच्छा मौका रहता है। ऐसे प्रोग्राम अगर होने के बाद में जो नए कोई परिवार आता है वो आपके साथ जुड़ने के लिए और फायदा हो जाता है। तो मुझे आप सबको एक ऐसा ही आपको सुझाव रहेगा कि आपके जो प्रोग्राम होंगे मुझे खाली फोन से संदेशा दे दो, मैं आपके प्रोग्राम में या आपके घर का प्रोग्राम होवे, आपके शादी होवे, अभी कभी कुछ अगर होगा तो मुझे खाली सिर्फ बताओ। मैं तमिल ही नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपके साथ जुड़कर तमिल बन जाऊंगा, ये आपको एक मैं आश्वासित कर रहा हूं। क्योंकि मलयालम मुझे तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप मुझे साथ में परिवार का एक मेंबर बना सकते हैं। तो परिवार का एक मुझे मेंबर अगर आप बनाएंगे तो मुझे खुशी रहेगी कि मेरे परिवार के लोग आप सब मेरे साथ में जुड़े रहे, हमेशा जुड़ते रहे। कहां भी आपको तकलीफ होगी तो मेरा नंबर आपके पास रखो, कभी भी फोन कर सकते हैं और आपको जो जरूरत होगी उसके लिए मैं आप बंधेला हूं। इतना ही आपको आज ये आश्वासन देता हूं। आप सबको ये प्रोग्राम की शुभकामनाएं देता हूं। बदलापुर में आपके दिल में जो होगा वो सुझाव भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके वजह से मैं आगे जा रहा हूं। मैं बहुत छोटे गांव से आया हूं, लेकिन इतना अच्छे तरह से मुझे लिफ्ट मिला है, कभी आज तक मुझे हार नहीं मिली। उसका कारण है आप लोग मेरे साथ हैं और हमेशा साथ में रहिए, यही आपको प्रार्थना करता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगले नए साल की भी आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं और रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
थैंक यू सर। कमेटी का जो भी लोग है अभी सामने है तो सबके साथ में आके फोटो लीजिए, बाद में ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलेगा। हमेशा मिलेगा। सर को मंत्री बनने के बाद टाइम तो मिलना चाहिए ना। ये तो बदलापुर वाला से भूल जाएगा, भूलेगा नहीं। देखो साहब का काम ऐसा है, जो काम बोलेगा करेगा ही। मुझे अभी एमएलए होने से पहले ही मेरा स्कूल बनाने का टाइम साहब के पास गया, घर पे 7 बजे गया, साहब खुद आके दरवाजा खोला, क्या गंगाधर क्या काम है? सर मेरे को इंग्लिश स्कूल का परमिशन मंगाइए, पहली परमिशन। तो 11 बजे तू ऑफिस में आओ। जब भी साहब जिला परिषद में अध्यक्ष था, मेरा ऑफिस में आओ, तो 11 बजे ऑफिस में सबको मिला, तो अमुक अमुक टेबल पे जाओ, पेपर रेडी था। इतना परफेक्शन है साहब, अभी जो बोलते हैं एकदम सही है, जो भी बोलते हो साहब करेंगे ही करेंगे। इसके लिए आपको, आप लोगों को कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो साहब के साथ, ऐसे किसी का रिकमेंड नहीं चाहिए, साहब को किसका रिकमेंड का जरूरत ही नहीं है। कोई भी जाओ, कौन सा भी पक्ष का आदमी जाओ, काम करने वाला आदमी है, एक ही है अपना किशन कतोरे साहब। इसके लिए तो 5 बार जीत के आया, तो अभिषेक को गिरा के, वो जब भी राष्ट्रवादी में था, नहीं कांग्रेस में था ना सर पहला, हाँ राष्ट्रवादी में था, और इसमें गिरा के आया, बाद में बीजेपी में गया, वो तो भी साहब आ रहे हैं। साहब कौन सा भी पक्ष में जाओ साहब आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका काम है। हम लोग को पक्ष नहीं चाहिए, किशन कतोरे साहब चाहिए, ऐसा कतोरे साहब चाहिए, ऐसा है उनके काम का स्टाइल ही ऐसा है। कोई भी जाओ काम करने वाला है, ऐसा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इसे ही काम करना है, कुछ क्या चलो ओके सर। कभी किधर होगा, कभी बताने का।